یہ نصف صدی سے قبل کی بات ہے۔ مشال بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جنوبی پنجاب کے ایک قصبے کی رہنے والی۔ اس کا تعلق ایک سردار گھرانے سے تھا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بالاج بخت کو سردار تسلیم کر لیا گیا، تو مشال کی منگنی بالاج سے کر دی گئی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اس کے باوجود اس کے دل میں مشال کی محبت مہکتی تھی۔ یہ آپس کے رشتے تھے، خاندان سے باہر لڑکی کا رشتہ ہو نہیں سکتا تھا اور خاندان میں کوئی اور رشتہ اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ منگنی کے وقت مشال 12 برس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سروقت ہو گئی۔ تبھی باپ نے اس کا نکاح سردار بالاج سے کر دیا۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ ان کے اور بالاج کے گھر بیچ صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جا سکتی تھی اور وہ بھی مشال کے گھر جا سکتا تھا۔ یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ سردار بالاج مطلق العنان طبیعت کا مالک تھا۔ بستی پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ سردار غیور بھی تھا اور خود سر بھی، جذباتی تھا اور ضدی بھی۔ اس کی بیوی اس کی ان خصوصیات سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے ناابس جانتی تھی۔ وہ ایک قبیلے کی سردار کی عزت تھی۔ اس کی زندگی اور موت اس کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ اس نے مشال اور سردار کے بندھن کو ایک زندہ حقیقت جان کر ذہنی طور پر تو اس سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کے دل نے سمجھوتا نہ کیا۔ اس کی زبان ضرور بند تھی مگر دل اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ مشال سردار کی ہونے والی دوسری بیوی تھی۔ یہ بات تسلیم شدہ تھی، اسی لیے نوکر چاکر اسے سردانی کا درجہ دینے لگے تھے۔ بالاج بھی گھر آتے ہی پہلے پھوپھی کے گھر جاتا اور مشال جہاں بھی ہوتی سردار کے آنے کا سن کر بھاگی ہوئی آتی۔ سردار لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر لے جانا معیوب خیال کرتے تھے۔ یہ ان کی روایات اور خاندانی وقار کے خلاف تھا۔ اس کے باوجود بالاج دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور مشال کی فرمائش پر اکثر اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا، جہاں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر کے خوشی محسوس کرتی۔ وہ بھی اس کے آگے دنیا کی ہر شے ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ کپڑے، زیور، سنگار کا سامان اس کا بس نہ چلتا کہ آسمان سے تاڑے توڑ کر لے کر آتا۔ اس توجہ نے مشال کو مغرور بنا دیا تھا۔ اسے سردار کی محبت پر بڑا مان تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ہر بات مان لے گا۔ سردار کی بیوی عزت خانم اپنی آنکھوں سے شوہر کی محبت کا یہ کھیل دیکھتی رہتی اور اندر ہی اندر کرتی رہتی، مگر مہر بالاب تھی کہ نکاح ہو چکا تھا اور اب رخصتی بھی چند ماہ بعد ہونے والی تھی۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھ لیتی اور پھر مسکراتے ہوئی صحن میں آ جاتی۔ عزت بی بی سردار سے بہت ڈرتی تھی، تبھی کچھ کہنے کا یارانہ نہ تھا، جبکہ مشال کم عمر اور الرٹ تھی۔ خود کو اپنی سوتن سے برتر جانتی تھی۔ ایک فاتح کی طرح اس کے سامنے سر اونچا کر کے چلتی اور عزت خانم کو چلانے کے لیے اس کے سامنے بالاج کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ عزت خانم ایک مجبور عورت کی مانند یہ سب دیکھ کر اپنی ٹھنڈی آہوں کو دل ہی میں گھونٹ لیتی تھی۔ ان آہوں نے آگ کی طرح سلگا سلگا کر راکھ کر کے اس کی پھیپھڑوں میں سوراخ کر ڈالے اور وہ ٹی بی کا شکار ہو گئی۔ اب اسے ہر وقت بخار رہتا۔ سردار پر عزت خانم کے اس خاموش اور سنگین احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ شاید اس کی خاموش آہوں نے بھی عرش تک رسائی پائی کہ مشال کی قسمت کا ستارہ گردش کے گرداب میں پھنس گیا۔ سردار بالاج کو اکثر اپنے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں باہر رہنا پڑتا تھا۔ جب وہ علاقے سے باہر ہوتا مشال کا جی گھبرانے لگتا۔ وہ اتاولی سی پھرنے لگتی، کبھی باپ کے گھر سے ماموں کے گھر اور کبھی ماموں کے گھر سے پھر باپ کے گھر آتی اور جاتی۔ اسی طرح وہ سارا دن بے چین قیدی کی مانند دونوں گھرانوں کے بیچ چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ سوتن سے تو دل کی بات نہ کر سکتی تھی اور نہ یہ پوچھتی تھی کہ سردار کب آئے گا، کتنے دنوں بعد آئے گا اور کہاں گیا ہے۔ تبھی وہ نوکر لڑکی ہانو کا سہارا لیتی، جس نے جنم سے ہی سردار کی حویلی میں لیا تھا۔ یہ 2 نسلوں سے سردار کے وفادار چاکر تھے۔ ہانو بالاج بخت کے گھر کی صحن میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی پرورش بھی اسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ سردار کے گھر کی خواتین اس سے پردہ نہ کرتی تھیں، لیکن وہ بھی اب 20 برس کا نوجوان ہو چکا تھا، تبھی سوائے اشد ضرورت اسے گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب گھر کی خواتین کو باہر سے کچھ منگوانا ہوتا یا کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ اس سے دروازے کے پیچھے سے کلام کر سکتی تھیں۔ ایک روز انتہائی بوریت کے عالم میں جبکہ سردار کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، مشال نے دروازے پر کسی کی آواز سنی اور دوڑی ہوئی در پر پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ہانو کی آواز ہے۔ اس نے پوچھا، ہانو کیا بات ہے؟ سردار صاحب کہہ کر گئے تھے کہ وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں اور 2 روز بعد آئیں گے، گھر میں بتا دو۔ ٹھیک ہے ہانو، میں بڑی بیگم کو بتا دیتی ہوں۔ اس دن مشال کو معلوم ہو گیا کہ یہ چاکر لڑکا کتنا اہم ہے، کیونکہ اسے سردار کے بارے میں باہر کی ہر بات کی خبر رہتی ہے۔ اب جب سردار باہر ہوتا اور مشال کا جی گھبرانے لگتا تو اسے خیال آتا کہ ہانو سے بات کر لے۔ وہ بڑی بیگم سے تو بات کر کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ اب صرف نانی رہ جاتی تھی جو ایک بوڑھی عورت تھی، اسے تو کھانسی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے مشال کا جی اور بھی ماندہ ہو جاتا تھا۔ اب صرف ایک ہی فرد ہانو بچا تھا جو سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ وہ گھر کے اندر نہ آ سکتا تھا مگر دروازے پر کھڑے رہ کر بات تو کی جا سکتی تھی۔ مشال اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔
तभी बेखौफ होकर मुलाजमा के जरिए उसे डेवड़ी में बुलवा कर बालाज के बारे में पूछती कि वो कहाँ गया है और कब लौटेगा। वो लड़का भी सरदार की सरगर्मियाँ मशाल के गोश्त गुजार कर देता। इस तरह खानोस के काफ़ी नज़दीक हो गया, यहाँ तक कि जब उसे बालाज के बारे में ज़्यादा तजस्सुस सताता उसे घर के अंदर पथारे वाले हुजरे में बुला लेती। ये कमरों से मुत्तसिल लेकिन बैरूनी दरवाजे की जानिब ऐसा कमरा था जो सर्दियों के मौसम में आग तापने के लिए इस्तेमाल होता था। ये लोग इसको पथारा या पथारी कहते थे। जब घर वालों का जी मिलकर बैठने को जी चाहता इस कमरे में बैठकर आग भी तापते और गपशप भी करते। खान का हुक्का भी यहाँ इधर रहता और ज़रूरत पड़ने पर कमरे के दरमियान चूल्हे में अंगारे दहका कर उस पर कहवा भी बना दिया जाता था। जब बाप घर में न होता तो वो नौकरानी से कहती कि हानू को अंदर बुला लो। हानू उसके हुक्म की तामील करता हुआ पथारे में एक तरफ बैठ जाता। मुलाजमा कहवे का बर्तन चूल्हे पर रख देती। मशाल हाथ तापते जाते और सरदार से मुतल्लिक कुरेद कुरेद कर हानू से बातें भी पूछती जाती। वो इसे बताता कि कौन सा मामला आया और सरदार ने क्या फैसला किया, जिरगा कब हो रहा है, किस वजह से बुलाया जाता है, बस्ती में किसका किससे झगड़ा हुआ, किसने किस पर गोली चला दी थी। मशाल के दिल में कोई खोट और बुराई नहीं थी, इसको तो बस बाहर की खबरें जानकर मजा आता था। ये बातों से बड़ी दिलचस्प लगती थी। गर्ज की हानू एक चलता फिरता हवार था और यही चीज़ थी जिसकी कशिश में वो हानू को पथारी पर बिठा कर रखती थी। मशाल को मालूम था कि उसका वालिद हानू से बातें करने की इजाज़त नहीं देगा और ना सरदार को ये बात अच्छी लगेगी। ताहम वो एक बेखौफ लड़की थी, शायद उसे अपने वालिद और सरदार दोनों की मोहब्बत पर कुछ ज़्यादा ही एतमाद था। मुलाजमाएँ दबे लफ्ज़ों से मना करती थी कि वो हानू को पथारी पर ना बुलाया करे, किसी भी वक्त कोई आफत आ सकती है। मगर मशाल कहती कि कुछ नहीं होगा। बाबा और सरदार बालाज बख्त को हानू पर भरोसा है, वो इसको अपने बच्चों की तरह चाहते हैं। ताहम मैं तुमको ताकीद करती हूँ कि इन दोनों को नहीं बताना कि मैं हानू को पथारी पर बुलाकर बात करती हूँ। वो अकेली पथारी पर हानू के साथ नहीं बैठती थी, अपनी हाथ साधमा को भी साथ बिठा कर रखती। उसको कह रखा था कि जो ही बाबा जाने सरदार के आने की आहट सुनो फ़ौरन मुझे बता देना, मैं हानू को बाड़े में जाने का कह दूंगी। इज़्ज़त हाना भी इस बात से अंदेशों में घिरी रहती थी। वो मशाल को तो ना रोक सकती लेकिन उसने मुलाजमाओं को सख्ती से ताकीद की हुई थी कि खबरदार, सरदार को इस बात की बिल्कुल भी खबर न होनी चाहिए। उनकी ज़ुबानें तो असुद बंद थी, उनकी अजब मजबूरी थी। वो मशाल को रोक सकती थी, ना ही मालिक से कुछ कह सकती थी, लेकिन आने वाली किसी बुरी घड़ी से खौफजदा ज़रूर रहती थी। हानू का हालाजाद भाई जल्लू भी उससे खानदान का पुराना नमकख्वार था। उसको हानू और मशाल का ये मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार उसने हानू को तंबी की, मगर उसने हालांकि बेटे की बात को बिल्कुल भी अहमियत ना दी। हद तक एक बार गाली गलौज से उसकी तवाज़ो भी कर दी। इस पर जल्लू ने कसम खाई कि मैंने तुमको सरदार की गोली से ना उड़वाया तो जलहान मेरा नाम नहीं। हानू बोला, चाचा बहुत देखे हैं तेरे जैसे खासिर। मशाल बीबी छोटी सरदार नहीं है, उसका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। वो मुझे अहमियत देती तो है तो तू क्यों जलता है? मैं जलता नहीं, मगर मैं तुझसे 30 वर्ष पड़ा हूँ। जो रवाज इनके हैं तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तेरी ये वफादारी किसी दिन तुझे मौत की जानिब ले जाने वाली है। चुप कर जा नमक हराम। सरदार की इज्जत पर इल्ज़ाम धरते तुझको शर्म नहीं आती? मौत की सज़ा इनको होती है जो बदचलनी करते हैं और हम बदचलन नहीं है। जल्लू अब तैश में आ गया, जवाब दिया कि ये तो अब वक्त ही बतलाएगा कि नमक हराम मैं हूँ या तू। अब ये जल्लू ने अपना फ़र्ज़ समझ लिया कि जिस रोज़ मशाल हानू को बुलाकर बातों में मशगूल होगी वो सरदार को इत्तला कर देगा। अगले रोज़ जब सरदार किसी झगड़े का फैसला करने दूसरी बस्ती जा रहा था, जल्लू ने दबे लफ्ज़ों में ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी साथ जाना चाहता था, लेकिन अब नहीं जाएगा। क्यों जलहान, तुम तो हमेशा मेरे साथ चलते हो, आज क्या हुआ? उसने कहा, जान बख्शी चाहता हूँ, कहने का मुझ में हौसला नहीं है। बोलो बोलो, तुम मेरे हाथ वफादार आदमी हो, डरो मत। जो बात कहना चाहते हो बेधड़क कह दो। जनाब, नमक हरामों की सज़ा मौत होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? जनाब, कुत्ते की ज़ात शफाफ पानी को नाकपाक कर देती है। सरदार गुस्से से थरा उठा, क्या कह रही हो? साफ क्यों नहीं कहते? जनाब, हानू छोटी बीबी साहिबा का कोई मेल नहीं है। आपके जाने के बाद अक्सर वो घर के अंदर जाता है। अगर ये बात सच न हुई तो जान ले के तेरा ही सर कलम होगा। जनाब, मैं हाजिर हूँ, जल्लू ने सर झुकाकर कहा। आज आप 2 घंटे बाद तशरीफ़ लाएं, आपको सामने वाले मोड़ पर मिलूंगा। अच्छी तरह सोच ले जलहान, सरदार बात गलत हुई तो मेरे बदन के टुकड़े चील कव्वे खाएंगे। बालाज बख्त खान के घर से निकलते ही जल्लू ने हानू की निगरानी पर खुद को मामूर कर लिया। सरदार को गए आधा घंटा गुजर गया तो मुलाजमा हानू के ठिकाने पर गई, जो धूप में चारपाई डाले लेटा हुआ था। मुलाजमा ने उसे दूर से इशारा किया और वापस हवेली में चली गई। हानू फौरन उठा और बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। उसने दस्तक दी। वो पथारी वाले हुजरे में बुलवा लिया गया, जहाँ वो एक तरफ चौकी पर बैठ गया। मुलाजमा ने कहवे की कैतली चूल्हे पर रख दी थी। सरदार साहब किधर गया है? मशाल के पहला सवाल था। पास वाली बस्ती में एक झगड़े का फैसला कराने, कब तक वापसी होगी? गर्ज इसी तरह के सवालात का सिलसिला हस्ब मामूल जारी हो गया कि कहीं हान किसी और औरत की तरफ तो माइल नहीं है। इतने में कहवा तैयार हो गया। मशाल के हुक्म पर हादमा ने कहवे का प्याला उसके आगे रखा। वो छोटे छोटे घूंट लेने लगा। बोला, बीबी साहिबा, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो। कल सरदार ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगाया था, मुझे उनके आने से पहले वो काम करने हैं। वो दूसरी बस्ती गए हैं, इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं। तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ और बातें पूछनी हैं। इतनी क्या जल्दी पड़ी है? आज सरदार की तबीयत अफसरदा सी, घर से रवाना तो हो गया था
लेकिन बीच रास्ते से वापस मुड़ा और घर की तरफ महवे सफ़र हो गया। मुलाजिमीन काम काज में मसरूफ थे। नानी अपने कमरे में चली गई। अकेली रह जाने पर मशाल के जी घबराया। वो चूल्हे के पास बैठी आग सेंक रही थी। हानू आया तो उसने जूते दहलीज के बाहर ही उतार दिए। वो कहवा पी चुका था। आज उसे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। वो जल्द यहाँ से चला जाना चाहता था। जब वो जाने को उठने लगा तो अचानक ही मशाल भी उठ खड़े हुई। इसकी शाल पास रखे सरदार के हुक्के को लगी और हुक्का गिर गया। तभी उसने हुक्का उठा लिया और हानू से कहने लगे, इसका पानी गिर गया है, तुम इस पर नया चिलम रख कर पानी भी भर दो। क्या तुम्हारे पास नया गुल है? जी हाँ अब्बा हुक्का पीता है, मैं भी लाता हूँ। वो दौड़कर बाहर गया और गुल ले आया। गुल देते हुए उसने मशाल की तरफ देखा जहाँ लाव की रोशनी ने चिरागा कर रखा था। वो अपने नाम की लाश थी, सुर्ख गुलाबी दहकता हुआ रंग जिसे वाकई मशल जल रही हो। वो इतनी खूबसूरत थी कि इस पर 1000 बार अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। उसने गुल यानी मिट्टी का बना हुआ कप सा चिलम उसके आगे कर दिया। फिर हुक्का उसको पकड़ाते हुए बोली, लो इसे पानी से भर दो। क्या तुम हुक्का पीते हो? इधर ये बातें चल रही थी और उधर झल्लू मोड़ पर खड़ा था। सरदार को आते देखकर उसने कहा, अब ठीक वक्त पर आ गए हैं। अब सरदार आगे आगे और बदबख्त आदमी उसके पीछे पीछे था। इधर पथारी वाले कमरे में मशाल उसी लम्हे हानू को हुक्का पकड़ाकर पूछ रही थी, क्या तुम हुक्का पीते हो? ये फिक्रा भी बालाज बख्त खान ने अपने कानों से सुना और हुक्का को पकड़ाते हुए अपनी आंखों से देखा। तभी उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बड़ी बेगम को आवाज़ दी, इज्जत मेरी बंदूक लाओ। सरदारनी बरामदे में थी। शोहर के रुख पर तनाव देखकर लरस गई। इतने में सरदार ने जल्लू को आवाज़ दी, अंदर आ जाओ और बंदूक मुझे दे दो। ये सुनकर इज्जत खानम तेज कदम उठाते अपने कमरे में दौड़ी। वो समझ गई कि आज इसका शोहर जरूर खून बहाने के इरादे से बंदूक मांग रहा है। जल्लू अंदर आ गया और सरदार को बंदूक थमाकर बाहर चला गया। खौफ के मारे हानू के हाथ से हुक्का और चिलम दोनों गिर पड़े और कदम हुजरे के फर्श पर जम गए। उसमें हिलने और भागने की सकत ना रही थी। उसी वक्त ज़ईफ मुलाजमा आते दिखाई दी। सरदार गर्जा, माई तो हट जा, मेरे सामने थे। इसी वक्त मशाल को मौका मिल गया और वो दरवाजे से बाहर निकल भागती हुई अपने बाप के घर चले गए। वो गलत थे या सही, बालाज बख्त को ये सोचने की फुर्सत नहीं थी। उसने मशाल को हानू को हुक्का थमाते हुए देख लिया था। बस यही पस मंज़र उसकी गैरत पर ताज़ियाना लगाने को काफ़ी था। मशाल उसकी मनकूहा, उसकी इज्जत थी और उसके नौकर को हुक्का पेश कर रही थी। इससे बड़ी और क्या तौहीन हो सकती थी। उसने गरज कर हानू को ललकारा, नमक हराम, कलमा पढ़, तेरी मौत की घड़ी आ गई है। वो सरासमी होकर मालिक के कदमों पर गिर गया। उसने अपनी बेगुनाही की कसम खाई और बोला, बेशक मुझ पर जहाँ मंजूर है, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी। तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो
तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाएगी तेरे लिए चाहे की जरूरत नहीं है तो मेरे घर के अंदर मौजूद है। साबित हो जाए